حاصل کرنے کی دعائی دی جا رہی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کے اسٹیج سے دی جا رہی ہے۔ آج اس موقع پر میں مڈاسا کے تمام ہی اس جلسے میں اور اس سبھا میں موجود تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک ماحول ہمیں عطا کیا، ہم اپنی بات آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آج ایک دیش کی آزادی کے بعد سے ہم نے اپنے ووٹوں کے ذریعے جن لوگوں کو حکومت کے تخت تک پہنچایا تھا انہوں نے ہمیں کیا دیا؟ آج پورے ملک کے اندر اقلیتیں اور خاص طور پر مسلمان آج پچھڑے ہوئے سماج جن کو دلت کہا جاتا ہے ہمیں ان سے بھی زیادہ پچھڑ گئے ہیں۔ ظاہر بات ہے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے آدیواسی سماج کو لے کر کے، دلت سماج کو ساتھ میں لے کر کے، آج مسلمانوں کو ساتھ میں لے کر کے سنویدھان کے تحت ہمارے جو حقوق ہیں ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین آپ کی گجرات کی سرزمین پر، مڈاسا کی سرزمین پر آئی ہوئی ہے۔ آج مجلس کے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ممبر آف پارلیمنٹ آج ہمارے درمیان ہے۔ میں یہ چاہوں گا یہ جو کھڑے ہوئے لوگ ہیں آپ نیچے بیٹھ جائیں، آپ کھڑے نہ رہیں، آپ خاموشی کے ساتھ نیچے بیٹھ جائیں۔ آنے والے مہمانوں کو سننا ہماری تہذیب ہے، آنے والے مہمانوں کا اکرام کرنا ہماری شریعت کا اور ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ آپ خاموشی کا ماحول بنائیں۔ آج اس وقت ہم نے مڈاسا میں مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے 6، 7 اور 8 نمبر وارڈ سے ہم نے امیدواری دی ہے، 12 امیدوار دیے ہیں۔ ان 12 امیدواروں کو کامیاب کرانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر آپ نے مجلس کے کاج سے، مجلس کی آواز سے اتحاد کرتے ہوئے اور لبیک کہتے ہوئے آپ نے اگر ایک اچھی شروعات کی تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مجلس کا ایک شاندار مستقبل ہوگا، اور یہاں سے آج جو ہے میونسپلٹی میں کونسلر چن کر کے جائیں گے، آنے والے دنوں میں کارپوریشن میں کارپوریٹر جائیں گے، اور اسی طرح جب ایم ایل اے ویدھان سبھا کا الیکشن ہوگا، اسمبلی کا الیکشن ہوگا، آپ کے یہاں سے انشاءاللہ ایک ایم ایل اے چن کر کے جائے گا جو اسمبلی اور ایوان میں آپ کی نمائندگی کرے گا۔ میں بہت زیادہ دیر آپ کے اور ہمارے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا، ایک اچھا ماحول آپ ہمیں دے دیں، ہم آنے والے مہمان کو اور خاص طور پر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو ہم سن سکے، اس کے لیے ایک سننے کا ماحول اور ایک خاموشی کی فضا بنانی ضروری ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج اتنی دھوپ کے اندر آپ نے مہمانوں کے استقبال کے لیے یہ اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے، اور پھر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو سن کر کے آنے والے الیکشن میں 28 فروری کو ہونے والی ووٹنگ کے اندر آپ مجلس کے امیدواروں کو ووٹ دے کر کے کامیاب کریں گے، اور ایک اچھی شروعات ہوگی، اور آنے والے دنوں میں پھر مجلس اتحاد المسلمین کے اسٹیج سے انشاءاللہ اس پورے ملک میں ہم اقلیتوں کی نمائندگی کریں گے۔ میں پھر آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اچھا ماحول بنا کر کے آنے والے مہمانوں کو سنیں، اور 28 فروری کے ہونے والے الیکشن میں اپنے گھر والوں کا، اپنے دوست احباب کا آپ محنت کر کے ووٹ دے کر کے مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کریں گے۔ میں آپ سے یہی امید کرتا ہوں، اور ایک اچھے روشن مستقبل کے لیے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے بیداری ضروری ہے۔ ہم نے لوگوں کو ووٹ دے کر کے ہمیشہ تخت تک پہنچایا ہے، لیکن کسی نے ہمارے لیے کام نہیں کیا۔ آج مجلس اتحاد المسلمین آپ کے حقوق کے لیے پارلیمنٹ گلی سے لے کر کے دلی تک، پارلیمنٹ تک، اسمبلی کے ایوانوں میں اپنی آواز بلند کر رہی ہے۔ میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ
अपने मोडासा के अंदर इन 12 उम्मीदवारों को कामयाब करे, एक अच्छी शुरुआत करे, अपने रोशन और अपनी नई नस्लों की रोशन मुस्तकबिल के लिए एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा आगाज करे। मैं इसी पर अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बिला ताखिर मडोसा के इंचार्ज अब्दुल हमीद साहब जो गुजरात के जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं उनको आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और अपनी बातें रखें। नामदू बन्नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मंच पे जलवा अफरोज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मालेगांव के विधायक मुफ्ती इस्माइल साहब, महाराष्ट्र के पूर्व विधायक वारिस पठान साहब, गुजरात के सदर साबिर भाई और मंच पे हाजरीन तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीटीपी के कैंडिडेट और सामने हाजरीन मेरी माएँ बहनें नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी वक्त से आपके साथ मोडासा में मौजूद हूँ और मोडासा में रह के ये माहौल पता चला कि मजलिस के लिए मोडासा के अंदर और हमारे सदर के लिए मोडासा के अंदर जो जज्बा, जो मोहब्बत है, वो आपके सामने ये मजमे को देख के पता चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर तकरीर करने का वक्त है। 12 हमारे कैंडिडेट हैं यहाँ पे मोडासा के अंदर। आने वाली 28 तारीख को वोटिंग के दिन वार्ड नंबर 6, 7 और 8 से मजलिस के कैंडिडेट को और बीटीपी के कैंडिडेट को जिता के यहाँ से कामयाब करिए इंशाअल्लाह ताला। काफ़ी मुश्किलें हैं, प्राथमिक जीवन जरूरियात की चीज़ें भी मोडासा के अंदर मौजूद नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमारे काउंसिलर्स यहाँ से जीतेंगे, आपके हक के लिए, हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। वक्त की कमी है इसलिए मुख्तसरी तकरीर करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं बिला ताखिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल स्पोक पर्सन एडवोकेट वारिस साहब को इस शेर पर आवाज़ देता हूँ। मैंने अपनी नम आंखों से एक हसीन ख्वाब देखा थे, मैंने अपनी नम आंखों से एक हसीन ख्वाब देखा के बीजेपी तेरा डूबता हुआ आफताब देखा था। नारे तकबीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दाइस पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, गुजरात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट जनाब साबिर काबुलीवाला साहब, महाराष्ट्र मजलिस के हमारे एमएलए मुफ्ती कासमी साहब, डॉक्टर साहब, मोडासा इंचार्ज हमीद भाटी साहब, तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान और यहाँ पर मौजूद मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनें, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। मोडासा में इलेक्शंस है, आगामी 28 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं और जिस तरह से दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को यहाँ से ठहराया है, इसी तरह पहली मर्तबा मोडासा गुजरात से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने भी उम्मीदवारों को यहाँ से ठहराया है। काफी बरसों से 2-3 साल से लगातार मोडासा के लोग, गुजरात की आवाम सब आ रही थी हैदराबाद को। सबका एक ही मतालबा था, एक ही रिक्वेस्ट था कि असद साहब आप बिहार में लड़े, यूपी में लड़े, मगर आपकी जरूरत हमको गुजरात में है। असद साहब आपकी जरूरत गुजरात वालों को है, आप गुजरात को आइए, गुजरात में चुनाव लड़िए, हम आपका साथ देंगे। असद साहब ने डिसाइड किया कि हम गुजरात में चुनाव लड़ेंगे और बीटीपी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है जनाब छोटू भाई वसावा साहब, उनके साथ में मिलकर अलायंस में गुजरात में हमने फैसला किया कि हम चुनाव लड़ेंगे। गुजरात के विभिन्न हिस्सों में हम गए, हर तरफ लोगों की जो मोहब्बत देखने को मिली, तो बस ऐसा लगा कि वाकई में हम देर से आए मगर बहुत सही वक्त पर हम आ गए गुजरात के अंदर। बहुत बड़ी बात है, आज आपके बीच में हम हैं। क्यों? हर
पॉलिटिकल पार्टी को आजमाया। मुझे यकीन है कि हमने कभी बीजेपी को तो वोट दिया, जितने भी किसी ने नहीं दिया, मगर हमने कांग्रेस को वोट दिया है। 17 साल इन्होंने अपना वोट लिया क्योंकि इनके पास, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। किसको वोट देते हम जाके? एक तरफ बीजेपी था, एक तरफ कांग्रेस था, लिहाजा एक मजबूरी थी। हमने जाकर अपना कीमती वोट कांग्रेसियों को दिया। चुनाव के पहले हमारे पास आए, बड़े बड़े वादे किए, फला कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन अफसोस मोडासा में मुझे कोई कामयाबी, कोई तरक्की कहीं नहीं दिख रही है, कहीं पर भी नहीं। कहीं मुझे कोई बड़ा अस्पताल नहीं दिखा, कहीं मुझे कोई बड़ी स्कूल नहीं दिखी जहाँ के मोडासा का लोग कह सके कि हाँ हमारे बच्चे भी इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ते हैं, या हमारे पास भी एक ऐसा अस्पताल है जो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकता है। कहीं पर भी नहीं ऐसा दिखा मुझे। मैं तो पूछता हूँ हर तरफ, देश के अंदर काफी लीडर्स हैं, बताइए मुझे कोई ऐसा लीडर जिसने अपने यहाँ पर, अपने हलके में 14 स्कूलें बनाई हो, जिसने अपने यहाँ पर 4 अस्पताल बनाए हो, जिसमें आप 30 रुपए का कार्ड खरीदो तो आपको 3 महीने तक इलाज फ्री। बताइए आपने कोई देखा है क्या ऐसा लीडर? कहीं नेता है क्या कहीं पर हिंदुस्तान में कोई ऐसा? मगर मैंने देखा है अपनी आंखों से, और वो है तेलंगाना हैदराबाद में असद ओवैसी साहब, ओवैसी ब्रदर्स की। अब तालीम की फील्ड में देख लीजिए किस तरह की तालीम दी जाती है वहां के बच्चों को। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान का बच्चा पढ़ेगा, नहीं, ये गलत बातें फैलाई जाती है हमारे बारे में। हमारी स्कूल में हर जात, हर मजहब के बच्चे आते हैं, तालीम लेते हैं। हमारे हिंदू भाई बहनों के बच्चे आते हैं, सिख भाई बहनों के बच्चे आते हैं, मसीह भाई, हिंदू भाई बहन, सब लोग आते हैं। इलाज जिस तरह एक शख्स का होना चाहिए उसी तरह सबका इलाज होता है। ये है हमारी पार्टी का काम। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे देश भर में जहां भी हम जाते हैं लोग बोलते हैं कि इस तरह की चीज यहाँ होना चाहिए। असद साहब आप आइए यहाँ पर, हमारे हल्कों में भी इस तरह का काम करिए, सब करिए, चाहिए। देखिए देश में कहीं पर भी जहां जहां भी आपने देखा होगा मजलूमों पर या हमारे दलित भाई बहनों पर अत्याचार हो रहा हो, अगर वाहिद कोई आवाज उठाता है तो एक ही शख्स है ना, असद ओवैसी साहब। ये तो आपने, मैंने, सबने देखा है। सबके पास मोबाइल है, सबके घर में टीवी है, सबके घर में न्यूज़पेपर आते हैं। आज बाबरी हो गया तो बाबरी पे बोले ओवैसी, दादरी पे मॉब लिंचिंग हो गई, दादरी पे बोले ओवैसी, 370 आ गया तो बोले ओवैसी, ट्रिपल तलाक आ गया तो पार्लियामेंट में खड़े रह के बोले ओवैसी, जहां मजलूम पर जुल्म हो गया वहां खड़े रह के बोले ओवैसी, हर माइनॉरिटी के लिए काम के लिए आगे बढ़े तो ओवैसी। तो फिर आपके वोट का असली हकदार भी ओवैसी हुआ या नहीं हुआ? ईमान की बात है, ईमान की बात है, याद रखना। हम लोग दिल में जिगर रखते हैं, साथ में ईमान भी रखते हैं। ईमान जिगरा है ना, मजबूत है, मगर साथ में ईमान भी मजबूत है। और ईमान का तकाजा ये है कि जो हमारा साथ दे, जो हमारी हक की लड़ाई लड़े, जो हमारी हक की आवाज बने, हमको भी उसका साथ देना चाहिए, है तकाजा। ये हुई ना मर्दों वाली बात, है ना? देंगे ना साथ ओवैसी साहब का? सोचिए आज एक शख्स 3 टर्म का एमएलए, 4 टर्म एमपी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज से नवाजा, दौलत, इज्जत, शोहरत, नाम, बड़े बड़े मंत्रियों का जो नाम नहीं है उससे ज्यादा नाम इनका, सब कुछ है। अगर सिर्फ हैदराबाद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे जा सकते हैं, मगर क्यों यहां से वहां भाग रहे हैं? दिल्ली से बिहार, बिहार से बंगाल, बंगाल से गुजरात, अहमदाबाद, मोडासा, गोधरा, क्यों? अरे हमारे लिए, क्योंकि दर्द है दिल में उनके, दर्द है नहीं। ये मेरी जवाबदारी है कि जहां कहीं से भी मुझे मेरा मजलूम पुकारेगा, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं जाऊंगा और उन लोगों की हक की लड़ाई लड़ूंगा। सिर्फ ये इरादा, ये मकसद लेकर आपके बीच में आते हैं।
चाहते हैं वो यही कि जिस तरह से तेलंगाना में हमने एजुकेशन दिया, जिस तरह से हमने वहां पे पब्लिक फैसिलिटी दी, जिस तरह के वहां पर रोड अस्पताल है, उसी तरह के रोड अस्पताल स्कूल गुजरात में भी बने। ये अरमान लेकर आए हैं आपके बीच में, लेकिन आपका साथ बहुत जरूरी है। आज वक्त का तकाजा, वक्त की नजाकत हर तरफ से इसी तरफ इशारा कर रही है कि हमको हमारी क़यादत को मजबूत करना होगा, हमको इत्तेहाद पैदा करना होगा, मुत्तहीद होना होगा। अगर हम एक हो गए, अगर हमारी सफों के अंदर एकता आ गई, तो यकीन मान लीजिए कि इंशाअल्लाह ताला गुजरात में मोडासा में इस मर्तबा भारी अक्सरियत के साथ जीत कराएंगे और मेयर भी हमारा बनेगा इंशाअल्लाह। मगर बशर्त यह है कि हमको भी अपनी जवाबदारी निभानी है। हम लोग इलेक्शन का दिन आता है, हम लोग वोट डालने को नहीं जाते, पोलिंग परसेंटेज कम हो जाता है। ऐसा मत करिए मेरे भाइयों, 5 साल में एक मर्तबा ये मौका आता है। आज ये हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। अगर हम सब ने ये सोच लिया कि नहीं, हमको हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है, बहुत देख लिया 70 साल, बहुत हमको लोगों ने बेवकूफ बना दिया, हमारे वोट ले लेकर हमको ही बेवकूफ बनाते गए। आज ये मौका आपके पास है, अभी नहीं तो कभी नहीं, याद रखना। ये शुरुआत है। अगर गुजरात मोडासा की आवाम चाहती है कि विकास हो, हमारे भी बच्चे आगे बढ़े, याद रखना आज ये बच्चा है, कल पूछेगा अब्बा आई थी एक जमात, आया था एक वाइट शख्स आपको जगाने, आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर आपके हक की लड़ाई लड़ने। अगर आप उस वक्त लड़ लेते तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आगे अपना बच्चा ऐसा सवाल नहीं करे, इसलिए मेरे बुजुर्गों जाग जाओ, आज मौका है। ऐसा वक्त लाओ कि आने वाले 10 साल बाद ये बच्चा खड़ा होके बोले अब्बा वाकई में आपने ऐसी जमात का साथ दिया, ऐसे एक मर्द मुजाहिद का साथ दिया, ऐसों का साथ दिया जिन्होंने मोडासा की धरती को पूरा बदल दिया, विकास किया, हमारी तरक्की की बुनियाद बनी। आज हमारा फल पक गया है पूरी तरह से, हम भी विकास देखेंगे। यह होना चाहिए बच्चों की जुबान के अंदर बात। तो मुझे यकीन है, उम्मीद है, मैं मुख्तसर से अपनी बात रखूंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है और मैं जानता हूं आप जिनको सुनने के लिए यहाँ पे उत्सुक है, बेताब है, उनको मौका दिया जाए। बस मैं आपसे एक दरखास्त, एक रिक्वेस्ट करूंगा और यहाँ पर बैठी मेरी पर्दाफेशा माँ बहनें हैं, इनसे भी खास तौर से रिक्वेस्ट करूंगा कि माँ याद रखो 28 तारीख के दिन आप सुबह सुबह उठ जाओ, एक दिन जल्दी से उठ के आप अपना वोट डाल दो। एक एक वोट आपका कीमती वोट है, याद रखना। संविधान ने डेमोक्रेसी में आपको जो अधिकार दिया है वोट का, उसका पूरा पूरा पालन करो, अपना वोट डाल दो। ये मत सोचो अभी मैं खाना बना लूंगी फिर दोपहर को खाऊंगी फिर जाऊंगी, नहीं, सुबह सुबह डाल दो। जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, बस इस बात को आप समझ लो मेरी माँ बहने। तो इंशाअल्लाह ताला 28 तारीख को पूरे मोडासा में सिर्फ एक ही चीज उड़नी चाहिए, पतंग। पतंग उड़ाएंगे ना, देंगे ना मजलिस के उम्मीदवारों को वोट, जिता के लाएंगे ना पूरे के पूरे 14 कैंडिडेटों को इंशाअल्लाह। हार जीत अल्लाह के हाथ में, मेहनत करना अपने हाथ में, कोशिश करो, इंशाअल्लाह जीत उसी की होती है जो कोशिश करता है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अब मैं बिला ताखीर गुजरात के सदर साबिर साहब को आवाज देता हूं कि वो आए अपनी बातें रखें। अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब और मजलिस के हमारे लीडर वारिस खान पठान साहब, मालेगांव से आए हुए एमएलए और मुफ्ती साहब यहाँ के, गुलाम नबी साहब, हमीद भट्टी साहब, आज तक आप बेवकूफ़ बनते हुए आए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दो ही थी आज तक, अपने पास तीसरा ऑप्शन नहीं था। आप बार बार हैदराबाद जाकर आप कहते थे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आप गुजरात आओ, लो आपके सामने आ गए। हम इनकी पैनल जो हमारी जो पैनल खड़ी है, आपकी पैनल खड़ी है, उसको आप जीताओगे कि नहीं? तो आज गुजरात के अंदर आए हैं तो एक अपनी ताकत दिखानी है, एक ताकत ये दिखानी है। आज तक दो कांग्रेस और बीजेपी थी, दोनों मिलजुल कर काम करते थे। एक बड़ा नाक था, एक छोटा नाक था।
एक कम काटता था, एक ज्यादा काटता था, तो आपने चॉइस किया छोटा कम काटने वाला। तो आज तक अपने छोटे, आपने को पता है दोनों एक सामने से, अपने को पता बीजेपी खुली दुश्मन, आपको पता है, लेकिन कांग्रेस कब वार करती किसी को पता नहीं। लेकिन अपने पास अब ऑप्शन आ गया है, अब आपको चुनना है। ये अभी तो ये शुरुआत है, अगले विधानसभा के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपने सीटें लानी है और ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करने लोग आ गए आपके सामने। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको मजबूत करना है, मजलिस को मजबूत करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा अभी यहाँ पर ये अभी नगर पालिका पंचायत के जो चुनाव है, ज्यादा से ज्यादा जुटा कर आप भेजिए यहाँ पर इंशाल्लाह, और अपनी ताकत बनेगी। आज बीटीपी पार्टी आई, छोटू भाई वसावा और MIM पार्टी अपने साथ में मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी पार्टी के साथ दलित, मुस्लिम, आदिवासी और बख्शीपंथ, ये चारों एक है। ये चारों अगर एक हो जाते तो 60% वोट हो जाए, 60% वोट होते तो एक अपनी ताकत बनती है। ये ताकत अपनी बनेगी, ये शुरुआत है। अब सब एक होना है, एक होना, नेक होकर सब मिलकर लड़ना है और अब मजलिस को मजबूत करना है। मैं आप सबको गुजारिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी कैंडिडेट उनको जिताए और उनको असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करें। मैं आपको गुजारिश करता हूँ, मैं कम ज्यादा टाइम कम है, आप जिसको सुनने के लिए आए हैं, मैं अब इंशाल्लाह अब आपके सामने आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज। मुद्दत से थी असद साहब आपसे मिलने की आरज़ू, मुद्दत से थी असद साहब आपसे मिलने की आरज़ू, ख्वाहिशे दीदार ने सब कुछ गवा दिया। किसी ने खबर दी कि असद साहब आधी रात को आएंगे, हमने इतना मुताला किया। नारे तकबीर, शेर हिंदुस्तान, असद साहब जिंदाबाद, असद साहब जिंदाबाद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनें, आज के जलसे में शिरकत करने वाले हमारे बुजुर्ग, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मोडासा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान मौलाना गुलाम सैयद साहब, मौलाना मोहम्मद मोहसिन इल्मी साहब, गुलाम मोहम्मद भाई साहब, गुलाम अहमद भाई साहब और उनके तमाम टीम के मेंबर व रुफ़क़ा, शहनशीन बतशरीफ़ फरमा गुजरात के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मेरे भाई जनाब साबिर साहब, मालेगांव महाराष्ट्र के रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हजरत मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब, हामिद भट्टी साहब, साबिक़ा रुकन असम्बली महाराष्ट्र वो मजलिसी क़ायद जनाब वारिस पठान साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस इलेक्शन में 12 उम्मीदवार और भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 उम्मीदवार, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर इस चिलचिलाती धूप में आकर आज के इस इंतखाबी जलसे को कामयाब किया। मैं शुक्रगुजार हूँ मोडासा के वो पुरजोश और जज्बाती नौजवानों का जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान को यहाँ तक लाया। मैं शुक्रगुजार हूँ मोडासा के बुजुर्गों का
जिन्होंने ये फैसला ले लिया कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरपरस्ती भी करेंगे, रहबरी भी करेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए वो दुआ भी करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि बरसों आपने मुख्तलिफ सियासी पार्टी का साथ दिया, जिसमें एक लंबा अरसा आपने कांग्रेस पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि कल तक आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके पास एक मुतबादिल के तौर पर आ रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं मेरी माँ और बहनों कि भारत की सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि जब तक आपके पास अपने वोट से मुंतखब शुदा नुमाइंदे जीतते नहीं, आपके मसाइल की तर्जुमानी वो नहीं कर पाते, आपकी तकालीफ को ना कोई समझ सकता है, ना उसको दूर करने की उनके पास नीयत होती है। आज भारत की सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि पिछले 65 साल से खास तौर से मुसलमानों को ये कहकर गुलाम बनाकर रख दिया गया कि आप सेकुलरिज्म का बोझ उठाइए, आप सेकुलरिज्म को कामयाब करिए। मैं मुडासा की गयूर अवाम के दरमियान में खड़े होकर आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्या आप इस बात से को जानते नहीं है कि आप सेकुलरिज्म का नाम पर वोट तो देते गए, मगर आखिर क्या वजह है कि इतने बरसों से यहाँ पर बीजेपी कामयाब क्यों होती है? ये बात बिल्कुल सच है कि आपने कांग्रेस पार्टी को सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दिया, मगर क्या यह बात सच नहीं है कि गुजरात में कांग्रेस के 16 एमएलए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो जाती है? क्या यह बात सच नहीं है कि आज 35 साल का अरसा हो चुका है, गुजरात से एक भी मुस्लिम अक़लियत का लोकसभा में मेंबर कामयाब नहीं होता? आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर इसकी वजह क्या है कि मुडासा हो या अहमदाबाद हो या फिर भरूच हो, जहां पर दलित, मुसलमान और आदिवासियों की आबादियां बसती हैं, वहां पर तरक्की के काम नहीं करवाए जाते? आखिर क्या वजह है कि जहां पर हम बसते हैं, हमारे महल्ले जात में पीने के पानी का नाक़िस इंतजाम, जहां पर हमारा घर है वहां पर खुली मोहरियां क्यों हैं? जहां पर हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं वहां पर उनको पढ़ने के मौके नहीं मिलते। इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वो गरीब है, उनके पास इतनी दौलत नहीं है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में तालीम दिला सके। मैं आपको बता रहा हूं कि इन तमाम चीजों का इलाज एक ही है कि आप अपनी एक सियासी क़यादत को बनाइए, आप अपने सियासी नुमाइंदों को मुंतखब करिए। यकीनन ये काम आसान नहीं है, मगर याद रखो मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं अपने बुजुर्गों से बड़ी इज्जत के साथ ये इल्तिमास कर रहा हूं, मैं अपने नौजवानों को ये बाखबर कर रहा हूं कि अगर तुमको तारीख लिखना है, कोई कौम अगर तारीख में अपना नाम रकम करना चाहती है, तो याद रखो तारीख उन लोगों से बनती है जिनको लोग नहीं जानते थे, जिनका नामो निशान नहीं था। तारीख उन्हीं को याद रखती है जो एक लंबे सफर के लिए एक छोटा सा कदम उठाते हैं पूरे इखलास के साथ। अगर आज आप मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोड का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन न सिर्फ मोडासा बल्कि गुजरात की सियासत में आप और हम मिलकर एक नई तारीख रकम करेंगे।
اور دنیا کو بتا دیں گے کہ کل تک جس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، آج انہوں نے اخلاص کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ اپنا قدم اٹھایا۔ اور ان کا ایک قدم یہ کیا تھا کہ انہوں نے 28 تاریخ کے دن متحدہ طور پر بے خوف ہو کر اور پوری امید کے ساتھ اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ تو نوجوانوں، آج اگر آپ ایک قدم اٹھائیں گے تو یقیناً تاریخ میں آپ اپنا نام رقم کریں گے۔ 50 سال کے بعد تم جب ضعیف ہو جاؤ گے اور جب میں نہیں رہوں گا اس دنیا میں اور بہت سے لوگ نہیں رہیں گے، کیونکہ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ جو اس دنیا میں آتا ہے اس کو جانا ضروری ہے، مگر جو کم وقت ہم کو اللہ نے جینے کا دیا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کم وقت میں ان مسائل کی طرف بھی توجہ لیں۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قوم اور ملت کے مسائل صرف دعا پر ختم نہیں ہو جاتے۔ اگر میری یہ بات کسی کو تکلیف پہنچا رہی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، مگر سچائی کو بیان کر رہا ہوں کہ صرف دعاؤں پر اکتفا کرنے سے قوم اور ملت کے مسائل حل نہیں ہو جاتے، بلکہ دعا کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور دعا کرنے کے بعد میدان کارساز میں آنا پڑے گا تاکہ تم کو یہ آزمانا پڑے گا کہ میری دعاؤں میں کتنا اثر ہے۔ جو قوم دعا کر کے میدان میں آ جاتی ہے اللہ ان کو نصرت اور کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دیکھا کہ طائف کے سفر میں آپ کو اپنے خون میں لہو لہان ہونا پڑا۔ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے امام حسین نے باطل طاقتوں سے سمجھوتا نہیں کیا۔ حق کو کامیاب کرنے کے لیے نواسہ رسول نے اپنی گردن کو کٹا دی، مگر کبھی اپنی گردن کو باطل طاقتوں کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ یہی پیغام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمہوریت میں آپ کو اپنے نہ سر کٹانے کی ضرورت ہے بلکہ نہ آپ کو اپنے سر کو جھکانے کی ضرورت ہے۔ میں صرف آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ ایک بار ہمت کر کے 28 تاریخ کے دن مجلس اور بی ٹی پی کے پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریے۔ برسوں آپ نے سب کو ووٹ دیا، آج ایک مرتبہ آپ اس دیوانے کے پیغام کو سمجھیے اور اس کو اپنا بھائی اپنا بیٹا سمجھ کر آپ اپنی اس پارٹی کو کامیابی سے ہمکنار کریے۔ میں یہاں پر اپنی مقبولیت کے لیے نہیں آیا ہوں، میں گجرات کو اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں گجرات کو اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں اگر گجرات کو آیا ہوں اور بھارت کے مختلف شہروں میں، ریاستوں میں، گاؤں میں جاتا ہوں، میرا مقصد ایک ہی ہے کہ تمہاری صفوں سے کوئی ایک لیڈر بنے، کوئی قائد بنے جو تمہارے مسائل کو سمجھ سکے، جو بے خوف ہو کر ظالموں کے درباروں میں بیٹھ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کے مسائل کی ترجمانی کر سکے۔ نوجوانوں، اگر آج تم متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کرو گے تو یقیناً تم اپنے مستقبل کو مضبوط کرو گے۔ میری عزت دار ماں اور بہنوں، آپ اویسی کا ساتھ مت دو، آپ ایک مرتبہ اپنا ساتھ دے دو۔ انسان دنیا میں آتا ہے، ختم ہونے کے لیے آتا ہے، میں بھی ایک دن مٹی میں جا کر مل جاؤں گا، مگر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی قیادت کو بنائیے۔ موڈاسا میں اتنی بڑی آبادی، یہاں پر دلتوں کی، ہمارے آدیواسی بھائیوں بہنوں کی، مسلم اقلیت کی، اگر متحدہ طور پر آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو یقیناً ہم تاریخ کو رقم کریں گے۔ ہماری زندگیوں کا کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھی زندگی کی حقیقت ہے کہ ملک میں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے سیاسی عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں، کوئی مکھیہ منتری بن جاتا ہے تو کوئی پردھان منتری بن جاتا ہے تو کوئی ودھائک یا سانسد بن جاتا ہے۔ ارے ہم سب آئے، سب چلے جائیں گے، یہ وقتیہ شان و شوکت ہے، مگر جو لوگ
जिंदगी भर हक के लिए काम किए, जो लोग अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिए, अल्लाह सुबह क़यामत तक उनके नाम को जिंदा रखेगा। और मोडासा की आवाम, आप गवाह हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह उसके रसूल के नाम पर वक्फ कर दिया, जिन्होंने अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत की, वो आज इस दुनिया में नहीं है। मखदूम शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, मगर आज भी उनका आस्थाना आबाद है। जिन्होंने गरीबी में अपनी जिंदगी गुजारी मगर हक का साथ नहीं छोड़ा, भूख और फाका कशी को इख्तियार किया मगर दूसरों की भूख को, अपनी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझा। यही चीज है कि सुबह क़यामत तक ये औलिया अल्लाह के आस्थाने आबाद रहेंगे। आज हमको इन औलिया अल्लाह की जिंदगियों से ये समझना, ये सीखने की जरूरत है कि हमको इंसानियत में मोहब्बत को फैलाना है, हमको इंसानियत में नफरत को का खात्मा करना है। मैं हमारी इज्जतदार माँ और बहनों को यह भी पैगाम देने आया हूं, क्या आप जानते हैं कि 29 सितंबर 2008 को क्या हुआ था? 29 सितंबर 2008 को मोडासा में क्या हुआ था? कोई जानता भी है क्या हुआ था? क्या आप जानते हैं उसमें एक मरने वाले बच्चे का नाम जमाल था, जिसकी उम्र 15 साल की थी। उस बच्चे की उम्र 15 साल की थी। जमाल अब्दीन गौरी उस बच्चे का नाम था। सुक्का बाजार की मस्जिद, रमजान का महीना, बम ब्लास्ट होता है, 7 लोग शहीद हो जाते हैं, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी की सरकार से, खास तौर से मुल्क के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी से, यहाँ के चीफ मिनिस्टर से, आरएसएस के तमाम लोगों से जो 90 साल तक चड्डी पहनकर लट फिराते रहे और 90 साल के बाद उनको ख्याल आया कि अब चड्डी नहीं पैंट पहनना पड़ेगा तो पैंट पहन लिए। मैं कांग्रेस के उन बुज़दिलों से पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी जबान पर जमाल का नाम आएगा या नहीं आएगा? क्या तुम्हारी जबान पर, तुम्हारी गुफ्तगू में, तुम्हारी तकारीर में यह जुमला आएगा कि मोडासा में बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 7 लोग मर गए, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। आज तक ये पता नहीं चला कि किसने बम ब्लास्ट किया, मगर सब जानते हैं कि बम ब्लास्ट करने वाले वो हरामी नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद थी। उन्होंने मोडासा में बम ब्लास्ट किया था, क्योंकि ये तमाम के तमाम नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद हैं। इसीलिए उनको नहीं पकड़ा जाता, इसीलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता और एनआईए ने केस को बंद कर दिया। मेरी मां और बहनों, मैं भी साहिब औलाद हूं और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सफर करता हूं, मगर जब वापस अपने घर को जाता हूं तो दिल में एक इश्तियाक होता है कि मैं अपनी औलाद को देखूं। मगर आज उस जमाल की मां का क्या हो रहा होगा जिसने बरसों पहले अपने बेटे को खो दिया और उस मां को यह तक पता नहीं कि किसने मेरे बेटे को मारा था, जमाल को किसने मारा था। उस जमाल की मां को तो अब तक पता नहीं चला। जो 7 लोग शहीद हो गए, उनके अफराद खानदान को नहीं मालूम कि हमारे अब्बा को, हमारे भाई को, हमारे बहन भाई को क्यों, चाचा को मारा गया, किसने मारा। मैं हमारी मां और बहनों से दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं कि अब दोबारा जमाल को नहीं मरने देंगे इंशाअल्लाह ताला। मोडासा में हम किसी जमाल को मरने नहीं देंगे, और अगर कोई जमाल को मारेगा तो याद रखो हम चुप नहीं बैठेंगे, आवाज उठाएंगे जमहूरियत में। इंसान की जान की कीमत होती है, चाहे वो इंसान मुसलमान हो या हिंदू हो, आदिवासी हो या ट्राइबल हो। अगर मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है तो मेरा खून की कीमत भी
तमाम के खून की कीमत के बराबर होने चाहिए। मेरा खून कोई गंदी नाली का पानी नहीं है, मैं इंसान हूं, मेरी जान की कीमत है। वो क्यों है? क्योंकि भारत का संविधान, भारत का आईन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया था। अम्बेडकर ने कहा था कि भारत में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, पटेल हो, सब बराबर है, सबकी जान की एक कीमत है। मगर मैं मोडासा की जनता से शिकायत कर रहा हूं, आपने इस संविधान के पैगाम को भुला दिया। कैसे बुलाया आपने डर डर कर, कभी इनके झूठे बातों में आकर कभी कांग्रेस को वोट दिया तो कभी किसी को वोट दिया, या फिर मायूस होकर घर में बैठ गए। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आज आप 28 तारीख के दिन अपने एक वोट का इस्तेमाल करो और बता दो इन जालिमों को जिन्होंने जमाल को कत्ल किया, जमाल को शहीद किया, कि हमारी जान की कीमत है, हमारी जान की अजमत है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अपना एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करिए। 28 तारीख के दिन अपने घर से निकलिए सुबह के अवलीन सातों में और पोलिंग बूथ को जाकर अपना एक वोट पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ बेखौफ होकर मजलिस के हक में इस्तेमाल करिए। ये कांग्रेस पार्टी ये जिम्मेदार है। अगर आज भारत का मुसलमान कमजोर है, अगर आज भारत के मुसलमानों की कोई सियासी आवाज नहीं है, अगर आज भारत के मुसलमान दलित आदिवासी परेशान है, तो यकीनन इसमें बहुत बड़ा रोल कांग्रेस पार्टी का रहा। मैं आज आपसे अपील कर रहा हूं कि आज आपके पास एक मुतबादिल के तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके पास है। आपको मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, मोडासा की आवाम को, मैं खास तौर से नौजवानों को, हमारी इज्जतदार मां और बहनों को सलाम करता हूं कि आपने CAA, NPR और NRC के खिलाफ आपने मोडासा में एक तारीखी एहतजाज किया। आपने गुजरात की सरजमीन को हिला कर रख दिया। आपने CAA, NPR, NRC के खिलाफ जो एहतजाज किया वो काबिल मुबारकबाद है। मगर मोडासा की आवाम, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, क्या आपने जब CAA का कानून बना तो क्या मोडासा के बुजुर्ग लोग जाकर अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं निकाल रहे थे? क्या आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना रहे थे? क्यों बना रहे थे कि CAA का कानून आ गया है, मुझे अपने कागज दिखाना पड़ेगा। मैं अपने बुजुर्गों से अपील करूंगा, अगर मेरी गुफ्तगू में कोई जज्बात या आपको नजर आते हैं तो नजरअंदाज कर दीजिए, मगर आप ये सोचिए कि कब तक हम डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे। CAA का कानून आया तो हम डर गए और हमने एहतजाज किया और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बीजेपी के 306 अरकान लोकसभा के सामने कहा कि तुम CAA का कानून बनाओ, हम भारत में फिर एहतजाज करेंगे। बल्कि मोडासा में जब CAA का एहतजाज शुरू होगा, ये दीवाना भी आपके सामने आकर साथ खड़ा हो जाएगा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये डर डर कर जिंदगी कब तक गुजारेंगे आप भारत के हम शहरी हैं, हमको अपनी आवाज उठाने का हक है, हमको बेखौफ होकर अपनी जिंदगी गुजारने का हक है। और जब तक आप अपनी सियासी क़यादत को मजबूत नहीं करेंगे, हम अपने मसाइल को भी नहीं हल कर सकेंगे। मेरी आपसे दबंग गुजारिश है कि आप मुत्तहिद रहिए। और ये एक और पार्टी का उम्मीदवार आया है, झाड़ू का कट्टा उसके हाथ में, ये इतना अजीब है, इतना बुज़दिल है, डरपोक है। जब दिल्ली में फसाद हो रहा था, जब दिल्ली में
ہندو اور مسلمان اپنے آپ کو انسان بھول کر ایک دوسرے پر حملہ کر رہا تھا، جب انسانیت ختم ہو رہی تھی، 20 سے زائد مساجد کو نقصان پہنچایا گیا، جلایا گیا، 50 سے زیادہ لوگوں کا قتل ہوا، یہ جھاڑو والا دلی کا بجائے ان محلوں میں جاتا جہاں پر گڑبڑ ہو رہی، یہ جا کر گاندھی کی سمادھی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ارے گاندھی کا اگر نام لے کر اپنی دکان چمکاتے ہو تو کیا تم نہیں دیکھے کہ تاریخ میں گاندھی نے جہاں کا ہندو مسلم فساد ہوتا تو گاندھی وہاں پر پہنچ جاتے۔ گاندھی ہندو اور مسلمانوں سے کہتے کہ مجھے مار دو پہلے تم۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ گاندھی نے بھوک ہڑتال کی تھی کہ میں اس وقت تک اپنی بھوک ہڑتال ختم نہیں کروں گا جب تک کہ ہندو اور مسلمان اپنے آپ کو مارنا ختم نہیں کریں گے، مگر یہ بزدل جا کر گاندھی کی سمادھی پر بیٹھ گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تبلیغی جماعت کو کورونا جہاد کے نام پر بدنام کیا گیا، تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کو گرفتار کر لیا گیا، مگر اس وقت یہ دلی کا بزدل خاموش بیٹھا ہوا تھا، اپنی زبان کو نہیں کھول سکا، بلکہ کھل کر تائید کر رہا تھا جو بی جے پی دلی میں تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اذان کے لیے ہماری تقریر کو روک دیا تھا، مختلف مساجد سے اذان ہوں گی۔ میری کوشش ہوگی کہ 10 منٹ کے اندر اپنی بات کو مکمل کر لوں تاکہ آپ تمام لوگ انشاءاللہ ضرور مساجد میں جا کر اپنی عصر کی نماز کو ادا کر سکیں گے۔ میرے عزیز دوستو، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میری آپ سے پھر سے گزارش ہے کہ ایک تاریخی موقع
मोडासा में आपके पास आया है, आप इसको इस्तेमाल करिए, अपनी वोट की अहमियत और अपनी वोट की कीमत को समझिए। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मुस्लिम अक़लियत, आदिवासी बसते हैं, दलित हमारे भाई बसते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मेयर का ओहदा देने से डरती है। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम अक़लियत को मेयर का ओहदा इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि डरती है कि अगर किसी मुसलमान को वोट देंगे तो हमारा वोट बैंक खत्म होकर रह जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कभी भी किसी मजहब के मुखालिफ था ना हूं ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह। मेरी लड़ाई अपने सियासी हक के लिए है और मैं इस बात को हरगिज मानने को तैयार नहीं हूं कि आप मेरे तरक्की की राहों में रुकावटें पैदा कर दें, आप मुझे जायज ओहदों से महरूम कर दें सिर्फ इसलिए कि हमको ये बताया जाए कि देखो अगर तुम मेयर बन जाओगे तो फिर मोडासा में दूसरे लोगों का वोट हमको नहीं मिलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील कर रहा हूं कि आखिरी मर्तबा, अगर मैं गलत ना कहूं तो हमको बताया गया कि 1990 में यहां पर एक मुस्लिम अक़लियत को मेयर बनने का मौका मिला। आज मजलिस के साथ छोटू भाई वसावा की भारतीय ट्राइबल पार्टी है और हम मिलकर पूरे गुजरात में इंशाअल्लाह ताला छोटू भाई वसावा के साथ अपने सियासी सफर का आगाज करें और पूरे मुकामात पर जाएंगे। और आप जानते हैं कि अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मोडासा शहर भी आपका है और यहां से इंशाअल्लाह मेयर भी आपका होगा। हमको और आपको मिलकर इस काम को करना है। और याद रखिए, किसी चीज को नामुमकिन मत समझिए, अपने हौसलों को बुलंद रखिए और बुलंद सोचिए, अपने ख्वाबों को पूरा करिए। ये वक्त हमको अपने ख्वाबों को पूरा करने का है। जो हम अपनी जिंदगी 1990 और 2002 के उस पुराशूब दौर से हमने उस कत्ल गारत गिरी के दौर को देखा, यकीनन वो एक बहुत बड़ा सानिया था, मगर हम ये नहीं चाहते कि ये हमारे बच्चे जो आज मासूम है कल इनका मुस्तकबिल उसी तरह हो जाए। इसीलिए मेरी इज्जतदार माँ और बहनों से, बुजुर्गों से दुआ है कि अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। हमारे आदिवासी भाई भी परेशान है। नरेंद्र मोदी साहब ने तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, मगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया तो 75,000 आदिवासी बेघर हो गए। उन आदिवासियों के बारे में कोई बात नहीं करता कि कैसे उनको अपने ही जमीन से निकाल कर फेंक दिया गया। जब 45 लाख हेक्टेयर जमीन गुजरात की सरकार बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देने की बात करती है, मगर जो गरीब, जो किसान, जो आदिवासी, जो मुसलमान, दलित जिसके पास जमीन नहीं है उनको नहीं देती। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, याद रखो, मजलिस के जो जब कामयाब होंगे तो कामयाब इसलिए नहीं होते कि मोडासा में हम अपना एक जुलूस निकाले, कामयाब इसलिए नहीं होते कि जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए। कामयाब इसलिए करना और कामयाब इसलिए होते कि जब मोडासा की जनता के मुस्तकबिल के फैसले किए जाएंगे तो मजलिस का नुमाइंदा जो फैसला करने वाला होगा उसके सामने कुर्सी डालकर बैठकर, पैर पर पैर डालकर बैठकर, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहेगा, अब वो कुछ नहीं होगा मोडासा में जो तुमने 40 साल से किया, अब यहाँ पर मेरे महल्ले में काम होगा, यहाँ पर रोड पड़ी जाएगी, ड्रेनेज का काम होगा, यहाँ पर मुझे अपना हक मिलेगा। ये सोचकर आपको आगे बढ़ना है। मेरी आपसे अपील है कि 28 तारीख के दिन अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। और मैं बीजेपी को चाहने वालों के लिए कह रहा हूं कि हाँ,
آپ بی جے پی کو ووٹ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ماشاءاللہ اب گجرات میں پیٹرول اور ڈیزل 88 روپیز پر لیٹر ہو چکا ہے، 88 روپیز پر لیٹر ہو چکا ہے۔ نعرے لگاؤ، بولو نعرے لگاؤ، 56 انچ کا سینہ، وہ 56 انچ کا سینہ غریبوں کے لیے دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے۔ 88 روپیز پر لیٹر ڈیزل اور پیٹرول ہو چکا ہے، جس میں سے 38 روپیز گورنمنٹ آف انڈیا موڈی سرکار کو جاتے ہیں۔ یہ بی جے پی والوں، اگر تم کو غریبوں سے اتنی سی محبت ہے تو جا کر اپنی سرکار سے کہو کہ گجرات کا غریب پریشان ہے، ٹرانسپورٹ کا کاروبار کرنے والا پریشان ہے، گاؤں سے مارکیٹ کو ترکاری لانے والا پریشان ہے۔ آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے بھارت میں کئی غریبوں کی نوکریاں جا رہی ہیں، مگر نریندر موڈی یہ کہہ رہے پچھلی سرکاروں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ موڈی جی، آپ کے بھکتوں میں ان کا فرسٹ فلور خالی ہوگا، ہمارا فرسٹ فلور ابھی اچھا ہے۔ ہم کو اللہ نے سوچنے اور سمجھنے کی طاقت دی ہے۔ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل تھا 2013 میں، اور آج جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک بیرل آئل بک رہا ہے وہ 2014 سے کم ہے، مگر آپ کی سرکار 1 لیٹر پیٹرول پر 38 روپیز لیتی ہے۔ موڈی جی، اگر آپ غریبی کو دیکھیں، اگر آپ غریبی سے اپنا سیاسی سفر کرتے ہوئے گجرات سے دلی کے بادشاہ بن چکے ہیں، تو بھارت کا غریب، گجرات کا غریب اس غریبوں کے نام پر ووٹ لینے والے پردھان منتری سے اپیل کرتا ہے کہ اگر آپ واقعی میں غریبوں سے محبت کرتے ہیں مسٹر نریندر موڈی، تو 38 روپیز کا جو آپ ٹیکس لے رہے ہیں غریبوں سے، یہ ٹیکس نہیں لے رہے موڈی جی، آپ ان غریبوں سے ان کا خون چوس رہے۔ اگر آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں تو کل اعلان کر دو آپ من کی بات میں کہ بھائیوں بہنوں، میں نے غریبوں کے خاطر ٹیکس کو کم کر دیا۔ 1 روپیہ نہیں، 2 روپیہ نہیں، بلکہ پورے 10 روپیے میں نے ٹیکس میں کم کر دیے۔ موڈی جی، آپ نے غریبوں کو بڑا خواب دکھایا تھا، 15 لاکھ تو نہیں آئے، کم سے کم 10 روپیے کم کر دو آپ اپنے ٹیکس میں۔ 38 روپیز کی جگہ آپ 28 روپیز لے لو۔ مگر یہ بی جے پی کے لوگ بولیں گے اے اویسی یہ بھڑکا بھاشن دیتا، اے اویسی آ کے ایسا ہی بولتا ہے۔ ارے ایسا ہی بولتا رہے گا، مگر تم بھی تو سوچو کہ تمہارے جیب سے پیسے نکل رہے، شاید تمہارے پاس 15 لاکھ آ گئے ہوں گے، غریب کے پاس نہیں آئے، شاید ان کے پاس 15 لاکھ آ گئے ہوں گے، اسی لیے یہ کچھ نہیں بولتے۔ مگر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، مگر بھارت کے پردھان منتری پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، بھارت کے پردھان منتری پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اور دوسری جانب آج کا یہ جلسہ ہونے کے بعد یہ کانگریس کے بزدل لوگ اب خاموشی میں میٹنگ کریں گے، فون لگائیں گے ایک دوسرے کو، ارے وہ آیا تھا شیروانی پہن کر، سر پہ گول ٹوپی پہن کر، اس کی باتوں کا یقین مت کرنا، اس کی باتوں کا یقین مت کرنا، یہ ہم یہاں پر گڑبڑ کرا دے گا موڈاسا میں، یہ ٹینشن پیدا کر دے گا۔ اے کانگریس کے پاپیوں، کانگریس کے بزدلوں، ارے تم میں ہمت نہیں ہے حق کو بیان کرنے کی۔ اللہ تمہارے منہ میں بھی زبان دیا، میرے منہ میں بھی زبان دیا، فرق صرف اتنا ہے کہ تم وہ زبان کو غلامی کے لیے استعمال کرتے ہو، میں اس زبان کو مظلوموں کے حق کے لیے استعمال کرتا ہوں۔
तुम्हारी जबान गुलामी की आदी हो चुकी है और मेरी जबान जब तक मेरी आंख खुला रहेगी, जब तक जिस्म में अल्लाह एक सांस को बाकी रखेगा, मैं मजलूमों की आवाज बनता रहूंगा, मजलूमों के हक के लिए लड़ता रहूंगा, जालिमों से पंजा आजमाई करता रहूंगा जमहूरियत के दायरे में रहकर। ये काम हमको करना है। ये कांग्रेस पार्टी से अब कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता कांग्रेस पार्टी का। अगर आप दुनिया के बड़े हकीम के पास भी चले जाएंगे, दुनिया के सबसे बड़े अरस्तुए ज़मा के पास भी चले जाएंगे और जाकर कहेंगे कि डॉक्टर साहब, हकीम साहब, एक पेशेंट है, बड़ा कमजोर हो चुका है, उसका इलाज करना है, तो डॉक्टर और हकीम बोलेगा पेशेंट का नाम, अगर कांग्रेस है तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये कांग्रेस के लोग बी टीम मुझे कहते हैं, अरे बिहार में हमने 5 सीट जीते हैं, तो बताओ वहां पर किसको हराया हमने? कांग्रेस को भी हराया, बीजेपी को भी हराया। बताइए आप, आज अगर बीजेपी से कोई मुकाबला कर रहा है पार्लियामेंट में, कौन कर रहा है? कांग्रेस के 50 एमपी है, क्या बोलते हैं उनको ही मालूम, आदि अल्फाज चाप कर बोलते हैं। जब CAA NPR NRC का कानून आया तो किसने बीजेपी के 300 MPs के सामने ये कहा कि तुम्हारा ये CAA का कानून भारत के संविधान के खिलाफ है? किसने बीजेपी के सामने आंखों में आके डालकर कहा था कि जिस तरह महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में सफेद फाम हुकूमत के कानून को फाड़ दिया था, इसी तरह रसूलुद्दीन ओवैसी भारत के लोकसभा में इन तमाम के सामने खड़े होकर CAA के कानून को हमने फाड़ दिया। ये इनसे नहीं हो सकता है, ये कांग्रेस के बुज़दिलों से नहीं हो सकता। ये याद रखो आप, मेरा जैसा जलसा खत्म होगा, रात से ये चमचे काम पे लग जाएंगे, ये काम पे लग जाएंगे, क्योंकि इनका काम सिर्फ इतना ही है, डराओ डराओ, डर के रहो, डर के रहो। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। हम इस दुनिया में आए हैं तो एक ही मर्तबा आए हैं और अल्लाह ने एक ही जिंदगी दी है, दो नई जिंदगी दी है। हम एक ही मर्तबा आए हैं, वक्त कम है, इसको अच्छे काम में गुजारिए। यकीनन अच्छा काम यह है कि इंसानियत को पैदा करिए, नफरतों का खात्मा करिए, बुज़दिली को अपने आप से दूर करिए, खौफ को अपने करीब आने मत दीजिए, उम्मीद पर फैसला करिए, किसी से मत डरिए सिवाय अल्लाह के। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, किसी से मत डरिए। और अगर किसी से मोहब्बत करना है और मोहब्बत का हक अदा करना है तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है। जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करेगा और पूरे इखलास के साथ मोहब्बत करेगा, तो हमको बताया गया, मैंने उलेमाओं के पैरों के पास बैठकर सुना कि जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि तमाम को बता दो कि ये हमसे मोहब्बत करता, हम इससे मोहब्बत करते हैं। डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अपने हिम्मत और अपने हौसलों को बुलंद रखिए। मुडासा में आप एक तारीख को रकम कर सकते हैं। मेरी आपसे ही गुजारिश है कि 28 तारीख के दिन मजलिस और बीटीपी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। परसों आपने सबका साथ दिया, आज ये जमात आपकी है। आप यहाँ से मुडासा की सरजमीन से अपने लोगों को, अपने भाई और बहनों को, यहाँ से आप इनको अपना लीडर बनाएंगे, यहाँ से आपकी लीडरशिप बनेगी। यही चंद गुजारिशात मुझे आपके सामने कहना था। फिर से अपील कर रहा हूँ कि मुत्तहिद रहिए और अपने कोड का इस्तेमाल कर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।